प्रैक्टिस नहीं किया, नहीं किया तो अभी करो, नहीं तो अभी से पनिशमेंट मिलेगी। डू योर प्रैक्टिसेस। मैजिकल एयर को आप जितना, जादुई हवा को आप बात करोगे, अपने ड्रीम्स बोलोगे, आपके ड्रीम्स को आप जल्दी अट्रैक्ट करोगे। स्टार्ट डूइंग योर प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना प्रैक्टिस में रहोगे ना, आप मैजिक्स देखोगे। चलो, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज, लेट्स कॉल अपॉन द यूनिवर्स। Take a deep breath in and out. Take one more deep breath. Take one more deep breath and out. Take one more deep breath. Feel the air and say thank you for this magical air that you're breathing in and out. Feel that gratitude from the heart. Thank you, universe, for this divine time. Thank you, universe, that day by day I'm becoming positive. Thank you, universe. Because of the gratitude practices, I am becoming aware of where I am doing right and where I am doing wrong. I'm catching my thoughts when I go down deep into negative situations, and I'm bringing them back to positivity. Thank you, universe, for filling that energy in my body, that day by day I'm increasing my practices and trying to fulfill my dreams. Thank you, universe, for blessing us with abundance of good health, relationships, money, and career. In all the areas, we are growing day by day. And the happiness what has come from the day I have started this practices is becoming immensely great and greater and greater. So thank you for those blessings which you are pouring on us so that we come together on this platform and live a fulfilling life and learn how to have a good, joyful life. Thank you, universe, for making me a channel of blessings so that I encourage other people to enlighten other people's life. Thank you. Thank you. Thank you. So open your eyes. So today we are on the 24th day, and please keep your cameras on. And आज हम, if you all have been doing the practices properly, अगर आपने अभी तक की practices पूरी कर ली है, तो फिर आज हम magicians बन रहे हैं। आज हमारे पास power आ रहा है। Today's chapter is the the magic wand. The magic wand. हमने बचपन में ऐसा सुना है कि परियों के पास वॉन्ड होता है, राइट? बट दिस बुक इज टुडे गिविंग अस दैट वॉन्ड वेर वी कैन हेल्प अदर पीपल। आज आपको ऐसा लगता है कि आज हमारे पास ऐसे कोई लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, मेरे लव्ड वंस, my family members, my husband, my wife, my children who are struggling with any problems, maybe any breakdowns like health, मनी वाइज में उनका एरिया अच्छा नहीं चल रहा है, या रिलेशनशिप में उनके कोई इश्यूज है, या बच्चे सुन नहीं रहे हैं, राइट? या हस्बैंड हमेशा इरिटेबल रहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स ऑफ द ऑफिस एंड एवरीथिंग। देन टुडे यू हैव दैट बॉन्ड। आपके अंदर अभी आज वो इतनी शक्ति आ गई है कि आज आप ये चीजें, आप जो ये ग्रैटिट्यूड का पावर कर रहे हो, अगर प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो टुडे यू कैन हील अदर पीपल। यू कैन हेल्प अदर पीपल बाय बीइंग ग्रेटफुल टू
by being grateful that they are already healed. You have to visualize. So the magic wand is, देखो ये पिक्चर में अभी परियों वाला मैजिक वॉन्ड एंड हाउ द मैजिक्स आर बीइंग क्रिएटेड, राइट? बोलता था ना ऐसे, जैसे वो अलादीन वाला भी चिराग, फिर वो पता नहीं कौन सी मूवी में बोलता था खुल जा सिमसन, तो वो दरवाजा खुलता था। तो इसी तरीके से आपके पास आज एक छड़ी आ रही है, तो दैट इज एन इमेजिनेटिव वर्ड व्हाट शी हैज यूज्ड एज मैजिक वॉन्ड. It is not the real thing, but she has given the chapter's name as Magic Wand to explain it to you कि हमारे अंदर आज पावर आ रही है. तो अगर आपने प्रैक्टिसेस किए तो अभी सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट, राइट डाउन एटलीस्ट 3 to 4 people whom you feel you really want to help. हो सकता है आपका कलीग हो सकता है आपका फ्रेंड हो सकता है आपकी वाइफ ही हो या आपका हस्बैंड ही हो, जिनको आपको ऐसे लगता है, या आपकी बेटी हो बेटा हो, जिनको आपको ऐसा लगता है कि यस दे आर स्ट्रगलिंग विथ समथिंग, दे आर ट्राइंग बट इट इज नॉट हैपनिंग, और आपको वो चीज पता है कि विथ व्हाट दे आर स्ट्रगलिंग. किसी का हेल्थ इश्यू हो सकता है, किसी फादर इन लॉ बीमार है, मदर इन लॉ बीमार है, एंड शी स्ट्रगलिंग विथ इट, and you know that that she's struggling with the health issues or health breakdown and you want to heal them. Yes, then definitely you can यूज टूडेज प्रैक्टिस. बट पहले उनका लिख लो. आज किन किन लोगों को आप ये मैजिक वॉन्ड देना चाहते हो? एटलीस्ट 2 to 3 people. राइट डाउन देयर नेम्स इन योर बुक. आपके बच्चे भी हो सकते हैं कि अगर आपका बच्चा नहीं सुन रहा है, बैक आंसर्स, सो दैट मीन्स you need to give your energy power to them, for bringing them into the right direction. सो दे स्टार्ट लिसनिंग टू यू, यू वांट देम दैट दे शुड लिसन टू यू. तो आप उनके लिए भी लिख सकते हो, हस्बैंड्स के लिए लिख सकते हो, वाइफ, इन लॉज, रिलेटिव्स, कलीग्स, जो भी आपको ध्यान में आता है उनके नाम लिख लो. प्रशांत जी, आपने लिख लिया? यस मैम, लिख लिया. ग्रेट. सो आज का चैप्टर ये बताता है कि हैव यू एवर विश्ड दैट यू हैड अ मैजिक वॉन्ड सो दैट यू कुड जस्ट वेव योर वॉन्ड एंड हेल्प पीपल यू लव. आपके लव्ड वंस कौन है? आज ध्यान करो कि जिनको आपको ये चीज देनी है, राइट? आज आपके पास इतना पावर सॉरी, आज आपके पास इतना पावर आ गया है कि यू कैन हेल्प अदर पीपल, you can help fulfill their dreams. So, well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. When you fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. हमको बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम किसी को देखते हैं, नेबर को या हमारे लव्ड वंस को, तो हमको ऐसा फील होता है यार कि काश इनकी लाइफ अच्छी हो जाए. ही स्ट्रगलिंग विद सम हेल्थ ब्रेक डाउन, ही स्ट्रगलिंग विद सम फाइनेंशियल इश्यूज. तो कितनी बार हमको ऐसा रियलाइज होता है कि हम क्या करें इन लोगों के लिए, राइट? और इवन व्हेन यू आर वॉकिंग डाउन ऑन द रोड, व्हेन यू सी समवन, आपके मन में कभी कभी ऐसी भावना आती है हमारे मन में कि यस यार, काश इसका कुछ अच्छा हो जाए. रास्ते में कोई आपका कोई पुराना दोस्त मिल गया, आप वॉक कर रहे हो और उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी आपको कि ऐसा ऐसा मुझे इश्यू हो रहा है या ब्रेक डाउन है, तो उस समय आपके मन में आता है ना कि मैं इसको हेल्प कर दूं, राइट? भले फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पाऊं, बट एटलीस्ट कि मैं कुछ कर सकूं उसके लिए. So that time she's saying that now you have that immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand कि आप ये हेल्प कर सकते हो सामने वाले पर्सन्स को. सो एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस ना थ्रू आउट द बुक. इफ यू आर सीइंग दिस, कि वेयर यू पुट योर फोकस, एनर्जी फ्लोज. हमने स्टार्टिंग में भी सीखा था कि वी ऑल आर एनर्जीज, वी ऑल आर एनर्जी. तो एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज, यानी जब आप आपका फोकस जहां पे डालोगे वहां पे मैजिक होगा.
आप किस चीज पे फोकस डाल रहे हो? अगर आपको किसको हीलिंग करनी है, किसको हेल्प करना है, आपके बच्चे नहीं सुन रहे हैं, आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपका सुने, बैक आंसर नहीं करे, तो आप ये पावर लगा सकते हो। आज का जो चैप्टर है उसका, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। अब एनर्जी फ्लो कैसे होगी और अटेंशन कैसे जाएगा? जब आप कंप्लीट फोकस एक चीज के ऊपर लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इन लॉ इज नॉट वेल, ओके, his health is not well and I want to, I feel that his health should be good, right? तो मैं उनके लिए प्रे करूंगी, मैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड करूंगी, आई विल गिव माई पावर, आई विल गिव माई एनर्जी कंटिन्यूअसली बाय विजुअलाइजिंग कि यस माय फादर इन लॉ इज रियली वेल। आप आंखें बंद करके उनको विजुअलाइज करोगे कि यस माय फादर इन लॉ इज रियली वेल एंड ही इज कमिंग एंड टेलिंग मी। अच्छा, आपके घर में कोई आपको खबर दे रहा है इस चीज की कि आपके फादर इन लॉ अच्छे हो गए, सपोज ही इज नॉट ऑल्सो स्टेइंग विथ यू, इज समवेयर फार, ओके। और या आपके आपके बच्चा एकदम बैक आंसर करता था और आपने उसको वो फिर पावर दिया, ऐसा पावर देना है आपको विजुअलाइज करके कि यस माय चाइल्ड इज लिसनिंग टू मी। और ये आपको आपकी वाइफ आके बोल रही है या उसके टीचर ने बोला कि अरे ये तो बहुत अच्छी सुधर गई है, ये तो अभी सबका सुनने लग गई है। तो दैट वे यू हैव टू इमेजिन कि यू आर गिविंग दैट हीलिंग पावर एंड यू आर विजुअलाइजिंग इट। तो यू हैव टू, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग कि एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। तो आपको पूरा फोकस उस चीज पे लगाना है कि यस ये चीज हो गई है और आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं। बट इसमें एक बात है, यू शुड बी नोइंग कि व्हाट दैट पर्सन नीड्स। सी, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। अब मैं फिर से ये रिपीट करी हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, so just pay attention. Energy flows where your attention goes. And so when you direct the energy of gratitude towards another person's needs, I'm again specifying towards another person's needs, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. ग्रैटिट्यूड इज एन इनविजिबल बट रियल फोर्स ऑफ एनर्जी। हम ग्रैटिट्यूड को है ना, जो हमारी ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग है, इट्स नॉट अ वर्ड, थैंक यू इज नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स अ फीलिंग व्हाट यू हैव टू फील। तो यहाँ पे वो ये भी बता रहे हैं कि व्हेन यू डायरेक्ट द एनर्जी ऑफ द ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स अनदर पर्सन्स नीड्स, यानी आपको पता होना चाहिए कि ये बंदे को क्या जरूरत है। ओनली इफ यू नो, ओके, ओनली इफ यू नो यू कैन यूज दिस मैजिक वॉन्ड, राइट? अभी फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत बार सुना होगा जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं, अब तो मुझे जीने की इच्छा ही नहीं है, राइट? अब तो मुझे जीने की इच्छा ही नहीं है। अभी अगर आप बोलोगे मैं ये बंदे के लिए मैजिक वॉन्ड चलाऊं, इट विल नॉट वर्क। टेल मी व्हाई इट विल नॉट वर्क? व्हाट इज द रीजन? आपके माइंड में क्या आ रहा है कि व्हाई इट विल नॉट वर्क? because he does not have that need यस, बिकॉज दैट to पर्सन live. की, यस वेरी गुड प्रशांत जी, वो पर्सन को डिजायर ही नहीं है ना लिव लिव करने की। तो इवन इफ यू गिव पावर और इवन इफ यू फील जैसे हमारे घर में होता है ना, हमारी मम्मी या कोई एजेड, ऐसे हम जाते जब मिलने के लिए तो बोलते हैं ना, चलो अब तो मेरा हो गया, मुझे जीने की इच्छा नहीं है। तो इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं मेरी मम्मी अच्छी हो जाए, मैं, तो इफ यू आर यूजिंग द रियल मैजिक पावर, यहाँ पे आप अगर मैजिक वॉन्ड यूज करोगे यहाँ पे, तो वो उस चीज का असर नहीं दिखेगा। बिकॉज वो बंदे की नीड नहीं है, वो बंदा नहीं चाह रहा है वो चीज को। सो देन योर पावर, कितना भी आप पावर लगा लो तो आपका पावर वेस्ट जाएगा ग्रैटिट्यूड का। बट इफ यू नो द पर्सन, कोई आके आपको ऐसा बोलता है यार मेरे को ना धंधे में ये पैसे की जरूरत है या मुझे जॉब की जरूरत है, तो यू नो हिज नीड, राइट? सो दैट टाइम यू कैन ब्लेस हिम, दैट टाइम यू कैन डू दिस ग्रैटिट्यूड वर्क फॉर हिम एंड यू कैन ब्लेस हिम। और इससे क्या होगा? See, they are saying that this is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy. यानी वो दिखता नहीं है, gratitude, but
इतनी एनर्जी है उसके अंदर कि अगर आप वो पावर लगाओ ना, कि वो फीलिंग लेके आओ, तो यू कैन क्रिएट मिराकल्स। एंड कपल्ड विद द एनर्जी ऑफ योर डिजायर, इट इज जस्ट लाइक द मैजिक वॉन्ड. Gratitude is an invisible but force of a real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is like having a magic wand. So if you have a desire, yeah, I want to heal my child. If you have a desire that I want my child should listen to me, let it be 20-year-old, let it be your child is 60-year-old, but you want कि अब वो आपसे बात नहीं करता है, या तो वो डिजायर है आपकी, right? So you can use that power that time also. It is for your needs also, and you can use it for the other people's needs also. But you have to visualize in this. So people who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. तो अगर कोई ऐसे सोचता है ना कि अरे कोई तो आएगा, थॉमस लिनेट पर्सनल डेवलपमेंट कोच, कोई तो आएगा, मुझे हेल्प करेगा, कोई तो आएगा जो मेरी ये इच्छा पूरी करेगा, तो शी सेइंग कि पीपल हु वेट फॉर मैजिक वॉन्ड फेल टू सी इट, बिकॉज फिर उनकी लाइफ में वो चीजें आती ही नहीं है. बिकॉज मैजिक वॉन्ड, वी आर द मैजिक वॉन्ड, दैट दे फॉरगेट दैट दे आर द मैजिक वॉन्ड. अगर आपने ये प्रैक्टिसेस रोज की है अभी तक, टुडे वी ऑन द 24th डे, and if you have done the practices in all these days, then you have that much power कि now you can create things for other people also. So if you have a family member, friend, or anyone who care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, किसी का divorce चल रहा है, किसी का कोई issue हो रहा है, has lost confidence in him or herself, is suffering from mental problems or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth and happiness. एक चीज है यहाँ पे, if you don't know and you want to give the power, then you have to speak whenever you're speaking that they are every time good. Whenever you are doing this practice, you have to say that they have achieved good health, they have achieved good wealth and happiness. बट अगर ज्यादा स्पेसिफिक नीड पता हो वो सामने वाले की, तो इट बिकम्स मोर इजियर. तो ही शी से कि यहाँ पे जो भी कोई, किसी का शादी नहीं हो रही है, किसी का कोई मेंटल हेल्थ इशू चल रहा है, किसी कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड, पीपल आर सफरिंग ना. वाई आपके मन में क्वेश्चन आता होगा ना कि अभी तक तो मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, वाई शुड वी गो एंड हेल्प अदर्स. यू विल कम टू नो वाई यू नीड टू start focusing on others also, because the more blessings you give others, you will get that blessings. So today I want कि आपकी जो भी डिजायर है ना, आज मुझे आप व्हाट्सएप पे पर्सनल में डीएम करोगे. यू वांट मी टू गिव द पावर टू इट. मैं भी तो करूंगी ना सबके लिए, जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मेरी फैमिली बन गए हैं. आई ऑल्सो वांट कि देयर विशेस गेट्स कंप्लीटेड. सो आप आज अपना अपना मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल में भेज देना, नॉट ऑन द ग्रुप, कि वट एवर योर डिजायर्स इज. सी आई हैव ऑलवेज अ लिस्ट विथ मी. सी एवरीवन्स नेम इज ऑलवेज रिटन विथ मी, where I am doing every day for the people who are there with me, connected with me, and for all the other people also. So whatever, like I know my sister is not well, so I specifically pass healings for her. तो जिनका जिनका जो जो मुझे पता है मैं उनको बोलती हूँ, और जिनका नहीं पता है मैं स्पेसिफिकली, लाइक धारा जी है, मुझे पता है उनका क्या प्रॉब्लम है, रमेश जी है, अभी मुझे पता है उनका क्या डिजायर है, धारा जी का मुझे पता है क्या डिजायर है. तो आई पर्सनली ऑलवेज आई कीप देम इन द प्रेस. तो you can share it with me on the personal this thing, whatever your one, very much you want, one desire, so that I start giving gratitude and power for it when my praise. It helps it helps. Even you can do it. If you have been practicing this, then definitely you can help other people also. And when you start doing this, I'll tell you, आप खुद ही मैजिक देखोगे. So to wave your magic wand for another's health,
इमेजिन दैट पर्सन हेल्थ हैज बीन फुल्ली रिस्टोर्ड। अगर आप जिसके लिए भी कर रहे हो कि वो उनको हीलिंग की जरूरत है, दे आर नॉट वेल, okay, so you have to imagine that that person is like we, my friend Agila, she knows that how we practice Ho'oponopono prayer whenever we get together for one of our friends husband who is really not well. So we do a mass practice together for him. And what, why? Because when we do together anything, you all might be knowing, in every religion this is there, ki when you do the mass practices it helps. So to wave your magic wand for another person's health, imagine that person's health has been fully restored, and say the magic words thank you. तो जब आप उनके लिए प्रे करोगे तो आप ऐसे करोगे. सो आई मोस्टली डू हो'oponopono प्रेयर फॉर द पीपल हु आर रियली सफरिंग फ्रॉम हेल्थ इश्यूज. तो आई रियली डू फॉर देम. So you can let me know whatever it is and say the magic words thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. यानी आपको फील करना है, you are saying thank you, thank you, thank you, taking that person's name is already healed. एंड आपको ऐसा इमेजिन करना है कि मुझे सामने से गुड न्यूज मिल रही है, वो मुझे कॉल करके बोल रही है या बोल रहा है कि अरे यार मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है, या उनके कोई फैमिली मेंबर आपको बता रहे हैं कि अरे उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है. राइट. So I always imagine that my friend is telling that her husband is already healed. So that way you have to give this power that is called magic wand. So you could imagine the person calling you. So you could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling in person, and really see and feel the reaction. And when you can feel as grateful now as you would when you heard the news that person's health has been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. यानी अगर आपने पहले से ही उस चीज को लगा दिया कि यस, मुझे, आपने थैंक यू बोला कि वो बंदे की हेल्थ अच्छी हो गई या उसका जो भी सपना था वो पूरा हो गया, एंड उसको फील करते हो, आपको वो फीलिंग में जाना है. And when that feeling, you feel really grateful, then you have already sent that power, and then you will definitely hear the news. But आपको पहले से फील करना है कि that person is healed. वो पर्सन का जो भी प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, that is already solved. You have to start feeling that. So to wave your magic wand to help someone you love with their wealth, फॉलो द सेम मैजिकल प्रैक्टिस. किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, ब्रेकडाउन है, यू कैन डू द सेम प्रैक्टिस. यू फीलिंग कि एज इफ दे हैव बिकम वेल्दी, देयर एवरीथिंग इज ओवर, मीन्स देयर फाइनेंशियल difficulties are over and they're telling you that I'm out of it, and be as grateful as if they had wealth they needed right now. तो आपको इस तरीके से इमेजिन करना है कि ये उनके पास चीज आ गई है, जो भी उनके डिजायर है. So imagine their wealth has been fully restored. It is done. And you are saying the magic words, thank you, because you have just received the amazing news. तो फील करना है कि आपके उनके पास से आपको ये न्यूज मिल रही है कि उनकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, वो आपको बोल रहे अरे कि मेरा ये जो काम था वो हो गया, उसमें मुझे पैसे आ गए, एंड आई एम रियली हैप्पी. मेरे जो भी इश्यूज चल रहे थे वो मेरे सॉल्व हो गए. तो आपको ये फील करना है कि जब आप थैंक यू बोलते हो. So if a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, हो सकता है कि बहुत ज्यादा breakdowns हो बंदे की लाइफ में, right? And then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth and happiness together. तो अगर आपको पता है कि any person is going through a tough time, ओके, बट आपको पता है कि ये बंदा टफ टाइम को जा रहा है, बट दैट पर्सन डज नॉट वांट टू शेयर. देयर आर फ्यू पीपल हु डू नॉट वांट टू शेयर. होता है ना कि हमारे पास, हमारी लाइफ में कोई ऐसे लोग होते हैं जो खुद बेयर करेंगे, जो खुद ये करेंगे, बट वो अपना जल्दी से बताएंगे नहीं कि उनको क्या इश्यू हो रहा है. राइट. तो हो सकता है, बट आपके दिल में ऐसा आ रहा है कि नहीं यार, ये मेरी फ्रेंड है, मुझे उसको हेल्प करना चाहिए. So if a person you know is going through a tough time,
बट यू डोंट नो व्हाट स्पेसिफिकली दे नीड, और इफ दे नीड हेल्प इन मोर देन वन एरियाज, उनके बहुत सारे ब्रेकडाउन चलते होंगे, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. So today's practice is, today choose three people you care about. See, today choose people you care about. It could be anyone, आपकी neighbor भी हो सकते हैं. Necessary, it's not that your loved ones, but start working on your loved ones if you feel more connected कि you want to heal them. आपके कोई बुआ हो सकती है, आपकी मासी हो सकती है, आपकी ननंद हो सकती है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, कोई भी आपको, आपके कलीग्स हो सकते हैं जिनको आपको फील होती है, आपका कनेक्टिविटी आपको फील होती है कि यार सच में उसको कुछ हेल्प करना चाहिए, शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट थिंग, नॉट एबल टू फाइंड अ राइट पार्टनर, नॉट एबल, गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज, नॉट वर्किंग वेल, नॉट हैविंग अ गुड जॉब, तो आप ये मैजिक वर्ड उनके ऊपर दे सकते हो आज. So today choose three people you care about who are currently in need of the health, wealth, or happiness, or all three. Get a photograph of each person if you have one. हो सके तो उनका फोटोग्राफ रखो. फोटोग्राफ नहीं है तो अगर फोन में होगा तो फोन में यूज करो. कीप दैट फोटोग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू एंड कीप, and while doing this practice, so get a photograph of each person if you have one and keep the photographs in front of you. Look at them and you feel, कि they are completely healed. और जो भी है, अगर उनके पास राइट पार्टनर नहीं है, they are looking for a partner, then you can say that she has attracted a good right partner, and she is happy, living happily a married life. आप ऐसे ब्लेस कर सकते हो उनको. आप फील करना है कि पहले से वो चीज उनको मिल गई है. So take the first person, hold their photograph in your hand, and then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has fully restored with whatever they need. यानी उनको जो भी उनकी desire थी वो पूरी हो चुकी है. You have to feel that. You have to visualize that. And it is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize. For example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. So she's saying it is much easier to visualize yourself receiving the news. आप बहुत आराम से विजुअलाइज कर सकते हो कि यार वो बंदे ने मुझे इतनी अच्छी न्यूज दी है, धारा जी ने मुझे इतनी अच्छी न्यूज दी है कि जो उनकी डिजायर थी वो कंप्लीट हो चुकी है, एंड शी इज स्टेइंग हैप्पीली वे शी वांट्स टू स्टे. आप ऐसे फील करो और ऐसे बोलो. एंड आपको इमेजिन करना है आंखें बंद करके कि यस रियली उनकी वो डिजायर कंप्लीट हो चुकी है, और वो आपको वो गुड न्यूज दे रही है कि यार मारिया जी मैं इधर पहुंच गई हूँ, आई एम स्टेइंग हैप्पीली देयर, मेरा लैपटॉप भी आ गया है. तो वट एवर द पर्सन इज डिजायर इज, आप वो भी फुलफिल कर सकते हो. गोइंग एनी नीड्स, एनी पर्सन इज रिक्वायरिंग एनी नीड. सी व्हाट हैपेंस इज फाइनेंशियली हमको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसी को हेल्प करने के लिए, राइट? बिकॉज वी ऑल आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल इश्यूज ourselves. तो हो सकता है कि आपका मन नहीं हो कि अरे इसको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है बट मेरा खुद, तो ये भावना नहीं लानी है कि मैं इसको नहीं हेल्प कर सकती. ये आप बोलो, आपको भी अगर डिफिकल्टीज है ना, आप सिर्फ ये बोलो कि उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज सॉल्व हो गई है. तो आप देखोगे अगर आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज अभी भी चल रही है तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज यू विल गेट दैट ब्लेसिंग्स इन रिटर्न. So it is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize. For example, an ill person healthy again. और अगर person depression में है तो you're seeing that person happy again. Or a financially stressed person abundant again. And if you feel more excitement and gratitude, and you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in the visualization. इसका क्या मतलब होता है? एंड यू विल फील मोर एक्साइटमेंट एंड ग्रेटिट्यूड इफ यू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन द विजुअलाइजेशन. आपको अपने आप को भी देखना है कि वो न्यूज आपको मिल रही है, राइट? वो बंदा जो भी है, आपने जिसके ऊपर भी आप ये मैजिक वॉन्ड डाल रहे हो, वो आपको ये गुड न्यूज दे रहा है, राइट? तो यू हैव टू विजुअलाइज इट.
अपने आप को उसमें विजुअलाइज, यानी यू हैव टू इन्वॉल्व योर सेल्फ। तो आप विजुअलाइज करो कि मैं बैठी हूँ, अरे उसका फोन कॉल आया और उसने बोला धारा जी ने, अरे कि यार मेरा ये सपना पूरा हो गया, मैं ये नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ। तो दैट वे यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू विजुअलाइज, आप जिसको भी हेल्प कर रहे हो, जिसको भी आप ले रहे हो। ओके, so open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words, thank you, slowly 3 times for that person's health. Thank you, thank you, thank you. And you have to use that person's name and saying, जो भी है, for that person's health, wealth or happiness or whatever combination they need. तो आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू पर्सन का नाम लेना है, जिसके भी आप नाम स्टार्टिंग में लिखे हैं, एंड उसकी जो भी डिजायर है या जो भी उसकी नीड है, आप उसको स्पेसिफाई करोगे, हैज ऑलरेडी बीन डन, ऐसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द नेम्स, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं, आपके मन में है कि यार वो सामने वाले को थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, बट मुझे स्पेसिफिकली पता नहीं उसको क्या हो रहा है, तो दैट टाइम यू कैन जस्ट से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो बंदे का नाम लेके कि उसके पास अच्छी हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस इज ऑलरेडी अचीव्ड। एंड आपकी आईज बंद करके आपको विजुअलाइज करना है कि आपको वो न्यूज मिल रही है उनके पास से, कि वो आपसे बात कर रहे कि यार सच में हो गया है, राइट। अभी जैसे मुझे किसी ने ऐसे बोला, अरे मैं मेरी बेटी के लिए रिश्ता देख रही हूँ, जैसे बीच में एक लेडी ने बोला था मुझे, तो मैंने उनको हमारे सामने ही रहती है यहाँ पे, तो मैंने उनको बोला था कि आप ऐसे ये विजुअलाइज करो, और फिर मैंने खुद से वो विजुअलाइज करना चालू कर दिया था कि शी इज गिविंग मी द ग्रेट न्यूज। और आप मानोगे नहीं, 1.5 महीने के अंदर उसकी बेटी का रिश्ता हो गया, एंड अभी जनवरी में उसकी शादी हो गई है। So that way, you, whenever any person tells you their problems or anything, they share their breakdowns. तो आपको पता है उनकी नीड क्या है अभी, राइट? तो यू कैन ब्लेस देम दैट टाइम एंड विजुअलाइज कि उनकी वो चीज तथास्तु हो गई है। देन व्हाट विल हैपन इज कि वो चीज रिटर्न में आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग फॉर्म्स में आएगी। So first you also have to give. So as you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice। यानी यहाँ पे आप क्या बन जाते हो? आपने देखा होगा कि हमने जब भी हमको कोई चीज की जरूरत होती है ना, जब बचपन में हम छोटे थे तो हम परी को बुलाते थे, राइट? अभी यहाँ पे आप जो है ना, आप खुद परी हो। आप जो भी बनना चाहते हो आप बन सकते हो। यानी आज आप खुद एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो भी आप बन सकते हो ना, वो बन सकते हो। आपको जो चीज के लिए लाइफ क्रिएट करनी है, आपको किसकी स्टोरी लिखनी है, आप उनकी स्टोरी लिख सकते हो। एग्जाम्पल दो तो, you have become that powerful now। As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth and happiness to all 3 people। If you have four, you can do for 4 people also. You can use this powerful practice when you are walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health or wealth। हमको कितनी बार होता है ना, रास्ते में कोई मिल जाता है, बोलता है, अरे कोई नेबर होता है, तो बोलते हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। यू कैन जस्ट दैट टाइम जस्ट ब्लेस देम, कि दे हैव रिस्टोर्ड देयर हेल्थ। माइंड में जस्ट आंखें बंद करके चलते चलते भी थोड़ा सा विजुअलाइज करो उनके लिए। when you come across someone who is obviously lacking happiness, health or wealth, imagine you have a magic wand। तभी आपको इमेजिन करना है, आईज बंद। आप जब बात कर रहे हो ना, तो आपकी भले आंखें खुली है, बट आपके मन में ऐसा ना आना चाहिए कि मैजिक मैजिक वॉन्ड मैं फिर आ रही हूँ ये सामने वाले बंदे के ऊपर और उसकी हेल्थ अच्छी हो रही है। So you can, imagine a magic wand and in your mind wave it by giving a heartfelt thanks for their wealth, health and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion। आपने उस एनर्जी को पास कर दिया है। तो आपको ये बिलीव करना है एंड करना है वो मैजिक वॉन्ड उसी समय, कि मैं मेरी एनर्जी पास कर रही हूँ। So using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish
for others, you also bring to yourself. सो हियर शी सेइंग दैट आप जितना दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हो कि दूसरे की हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस रहे, जितना आप दूसरों के लिए विश करते हो उसको 4 फोल्ड में, 10 फोल्ड्स में यू विल रिसीव टू योर सेल्फ. एंड मैजिक प्रैक्टिस नंबर 24, वी डू द काउंट योर ब्लेसिंग्स फॉर योर पेरेंट्स. अपने जो सोर्स एनर्जी है पेरेंट्स, उनको कभी भूलना नहीं. अपने मेंटर्स, गुरु, यू कैन राइट फॉर देम. Then choose 3 people you care about and who you would like to help with more health, wealth and happiness. If you have them, collect a photograph. देखो ये इसमें लिखना कुछ नहीं है, आपको आज सिर्फ फोटोग्राफ लेना है. अब प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम लगेगा मंजू मैम? ये प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम लगेगा? Hardly 5 minutes. Yes, hardly 5 to 10 minutes. Right? So you can do it anytime sitting. So today do this practice if you have them, collect, because कब वो blessing आपके पास रिटर्न में आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा. So if you have them, collect a photograph each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes for 1 minute, she's saying. See, only for 1 minute. तो अगर आप 5 to 10 मिनट्स भी लोगे, 2-2, 3-3 मिनट भी आप विजुअलाइज करोगे और बार बार बोलते रहोगे कि शी इज ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ एंड शी इज गिविंग यू द न्यूज दैट शी इज इन गुड हेल्थ. ओके, तो आप देखोगे कि आपको 5-10 मिनट्स भी नहीं लगते ये प्रैक्टिसेस करने के लिए. सो क्लोज योर आईज एंड फॉर 1 मिनट विजुअलाइज द पर्सन's हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हैज बीन फुल्ली restored and you are receiving the news. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for the names, health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all 3 people. And just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing happened during the day. So this is today's chapter and today's practice. Any questions coming to your mind? So today you all are going to send me my personal chat, send me your needs, desire, your one specific desire or need, what you want to happen. So I will also start giving the power. So tell me, what shall we do now? Any no question coming? Do you want me to take open a prayer? Shall we do it for ourselves? Any question coming to your mind? धारा जी कहाँ गए आज? आज क्वेश्चन नहीं है. रमेश जी, कोई क्वेश्चन? प्रिया जी, any question coming to your mind? You can ask. अरे कोई जवाब ही नहीं देता है. Please on your cameras from tomorrow. Otherwise I'll stop it. Ma'am, one thing which was like, जो भी आपको चाहिए, we are raised in an environment where you're not allowed to share it with others, right? Even the desire. वो बोलते हैं कि आप बात बोलोगे तो it won't happen. You know, the energy is affected by others' energy too, right? So I was thinking like, how does it even work? Like, even if you have a deep desire, and if you tell Because you have and you're not afraid it practiced, won't happen. because you have not been into the practices from the day one. So Yeah. you're not aware of that. Basically, if you feel that way, and then you will not get any power. Hmm. Ma'am, I joined late also, right? So I have not even attended like Yeah, that is 5%. what I'm saying now. So you are not able to give that power, but basically, when you share and if you give power and blessings, okay. पहले के जमाने में जब शादियां होती थी एंड हम चरण छूते थे, राइट? Hmm. हम चरण क्यों छूते हैं? To show, I mean, like indirectly, like to get their blessings. I mean, हाँ, तो yeah. वो
tell me, what do they give you? Like elders, what do they give you? Good thoughts. What blessings they Wish. give? एनर्जी एनर्जी एक्सचेंज होती है हमारी। नहीं, एनर्जी एक्सचेंज की बात नहीं हो रही है। जब से हम पैर छूते हैं बड़े लोगों को, बड़े लोगों का, एल्डर्स का, तो जो पहले के जमाने में नहीं, शादी करके आते थे तो बोलते थे पहले हम, जैसे हमारे में रिचुअल अलग होता है, तो पहले के जमाने में लोग बोलते थे कि पैर छुओ, राइट, बड़ों के, राइट, अभी भी गुड बोलते विशेस हैं। देते हैं, यस प्रशांत जी। गुड विशेस देते हैं, सो आई थिंक इट मेक्स यू फील गुड एंड बेटर यस, कि दे हाँ गिव यू ठीक है। गुड गुड बेस्ट विशेस। विशेस। गुड हम्म। विशेस, राइट। हम्म। हमको ब्लेस आशीर्वाद करते देते हैं हैं। मैडम जी। जी, रमेश जी बोलिए। जी मैडम जी, आशीर्वाद देते हैं वो। आशीर्वाद देते हैं। तो जब हम आशीर्वाद देते हैं तो डू यू थिंक दैट योर डिजायर विल नॉट गेट फुलफिल्ड? पहले बोलते थे ना, तथास्तु, फूलो फलो, फूलो हम्म, फलो, खुश रहो, चार पोतिया पोते लाओ, क्यों बोलते थे? तो वी आर गेटिंग दैट ब्लेसिंग्स, दे गिव अस दैट एनर्जी, जो भी आप बोलो, बट देन दैट डज नॉट मीन कि अगर आप आपकी डिजायर दूसरे को बोलो तो वो फुलफिल नहीं होती है। तो प्रिया जी, आई थिंक बेसिकली यू हैव नॉट बीन नॉट ज्वाइनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग ना, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि वेट yeah. at the next session. That is why you're not understanding. But yes, Yeah. definitely you can share your personal desire also, because when I sit for my prayers and I go into deep meditation, I pray for everyone, even whom I don't know. Hmm. Okay, ma'am. Sure. Yes, Dhara ji. मैम मेरी आज एक विजुअलाइजेशन कंप्लीट हुआ। मैं है ना 2 दिन 3 दिन से सोच रही थी कि मेरी फ्रेंड का कॉल नहीं आया, हम गेट टुगेदर नहीं किया, घूमने नहीं गए। तो आज मैंने जस्ट ऐसे ही उसको मैसेज किया कि मुझे तेरे पैसे देने के हैं इतने इतने। तो बोले चलो ना मिलते हैं, चलो ना पानी पूरी खाने जाते हैं, चलो ना घूमने जाते हैं, गेट So टुगेदर nice. करते हैं। तो वो So दो nice. दिन पहले मैं विजुअलाइज कर रही थी कि कैसे कैसे करेंगे, कैसे कैसे जाएंगे। और वो रोड इतना अच्छा हो गया, वो भी मैंने विजुअलाइज किया था, और सच में वो रोड इतना अच्छा हो गया है, मतलब बार बार जाओ ना ऐसा मन करता है। और सेम वैसी सारी चीजें हुई वहां पे। तो Great. वो मुझे अभी पूरा यकीन हो गया कि यस, विजुअलाइजेशन जल्दी से फुलफिल होता है। और आज सुबह थोड़ा ब्रेक डाउन भी आया था, बट उससे मैं जल्दी अपने आप को निकाल पाई। Great. Yes, very great. Good, good, Dhara ji. Prashant ji. Yes, Prashant ji. मैम मेरे को एक क्वेश्चन है, नॉट अबाउट टुडेज क्लास बट जनरल। Yeah. एक क्वेश्चन है। सो वी टॉक्ड अबाउट दिस मैग्निफिसेंट आउटकम, राइट? Hmm. उसमें मेरे को शायद दो क्वेश्चंस है ऑन द सेम वन Hmm. Hmm. सिंपल थिंग। बिकॉज यूजुअली आपने जो एग्जांपल दिया इट वाज मोर अबाउट ओके यू हैव समथिंग लाइक आप एक मीटिंग के लिए जा रहे हो या कुछ Hmm. काम के लिए जा रहे हो एंड देन यू जस्ट एट दैट पॉइंट स्टार्ट विद this prayer or this saying ki okay the outcome now is going to be great, right? Hmm. But Yeah. is it really कि वो इवेंट से पहले ही करना है या और कैन यू आल्सो डू दैट लाइक इन द मॉर्निंग? सो व्हेन इज इट बिकॉज You मोर can अभी। हाँ। you can do it before you're leaving, and हम्म। it is not only that that is going well, but आपके मन में क्या है उस मीटिंग को लेके, what outcome you want, so it should हम्म। happen exactly that way. यानी मेरे को ऐसा है कि आज मैं जो क्लाइंट को मिल रहा हूँ, मुझे उसके पास से बिजनेस आना ही आना है, चाहिए ही चाहिए, राइट? हम्म। I'm giving just an example to make you या understand. I don't know exactly what you are working in the company as, but I'm just giving you example कि अगर मैं आज मीटिंग के लिए जा रही हूँ, मुझे वो क्लाइंट से बिजनेस चाहिए ही चाहिए, तो आई विल पुट कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस मीटिंग एंड आई हैव गॉट द बिजनेस हम्म। फ्रॉम दैट क्लाइंट. It has ओके, gone so well that person has given me the business. सो दिस कैन हैपन इवन इन द मॉर्निंग, राइट? आप उठ Yes, के in the ये कर morning. सकते Yes, yes. Before leaving, you can do it in the morning also when you're writing your gratitude. I mostly write also. But the day if I'm not able to, तो मैं कभी हो। रास्ते में जाते जाते भी, I put my magnificent outcome. Like yesterday, I visited 3 schools for observation.
So I had to, Mhm. from one school to another, I morning only I put, the magnificent outcome that all the observations are going well, and on time. For me, time management is very important because I'm very organized. तो Okay. मुझे वो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई ऑलवेज फील कि मेरी चीजें टाइम पे हो जाए, तो आई ऑलवेज पुट दैट मैग्निफिकेंट आउटकम एंड आई गो. Hmm. ठीक है. Okay. यस, व्हाट अदर My क्वेश्चन? second, yeah, my second question, maybe it will sound silly, but मैं still पूछना चाहता हूँ. Um, so the outcomes that you want, right? So for example, two things which I tried. एक दिन मेरे को I had to reach office by a certain time. मैंने I tried to predict that and say कि मेरे को the gratitude and saying that I want to reach by this time, but मैं पहुंचा नहीं, right? या. And see, the thing is it that what I'm doing the practice is not right, or was it unrealistic, right? Because I know Bangalore, मैं उस दिन भी पूछा था आपको, हाँ. Bangalore the traffic is so unpredictable, हम्म. and I was also expecting something which was not possible, right? Because 25 minutes में मैं office पहुंचता ही नहीं. No day I reached there because on that certain day I know the traffic, but still I had to reach by a certain time. I tried it out, नहीं हुआ. I'll give you ओके. one more example. I'll give you one more example. Maybe it also you'll also understand what I'm struggling with. हम्म. The other thing is, अगर मेरे को, for example, अभी hikes there is, so I wish for, let's say, a 20% hike, right? हम्म. But if the industry average or this year's average is only 12%, हम्म. now won't I get disappointed कि अरे यार मैंने इतना सा practice किया अब नहीं हो रहा है, right? हम्म. Because I might have still gotten a good hike, but the हम्म. average is only 12% or the best in the industry is only 12%. मेरे हम्म. को 20% पूछने में it is not the right thing, right? So हम्म. what? So this is probably a another kind of an example कि okay, I am wishing for something, but it is should I be more realistic when I ask? अगर मैं सैलरी पूछ रहा हूँ कि मेरे को 2 लाख सैलरी चाहिए, शुड आई बी रियलिस्टिक क्योंकि वो सैलरी हो ही नहीं सकता है? शुड आई विश फॉर दैट और शुड आई विश ऑलवेज फॉर समथिंग दैट इज मोर रियलिस्टिक? No, I'll tell you now one thing. See, your first question was about that you tried for traffic, and the words you used was, I want to reach on time. You are not going to use the word want. I have already reached my office on time. You have to always believe कि आप पहुंच गए हो. अगर आप बोलोगे आई एम ट्राइंग एंड यू आर सेइंग द वर्ड्स आई वांट, मे बी आपके माइंड ने तभी ये बोला आई वांट टू रीच ऑन टाइम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई वांट टू रीच ऑन टाइम. If you use the word want, that is not going to help you. See, here words play a power. ये book में वही है कि secret book, this book says that it is the words which play with your mind. So the how you're using your words. You said I want. So if you would have said कि thank you, thank you, thank you, I have reached on time. ओके. I have reached on time. That means आपने पहले से ही वो magnificent outcome लगा दिया. क्या I have reached. तो then universe का काम है, वो भी कितना भी ट्रैफिक हो, कितना भी. I'm telling you, I had, we had stuck at Lonavala with I and my son with such a big traffic jam. And I just, just said ki thank you, thank you, thank you. The road is clear, and I just started doing open, open, no, and I reached. मीन्स मेरे बेटे को इतनी ऐसी जगह मिली थी कि वो साइड में से गाड़ी निकाल लिया था, एंड हम आगे पहुंच गए थे. तो यू डोंट हैव टू थिंक कि हाउ इट विल हैपन. आपका माइंड फोकस किधर चला जाता है कि होगा क्या नहीं, ये रियलिस्टिक है क्या नहीं. यू जस्ट हैव टू बिलीव कि ये होगा. आई एम गोइंग टू रीच ऑन टाइम. सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई हैव रीच्ड ऑन टाइम to my office. Your ओके. second question was that you want a hike, but you're saying the industry norms are of 12% and I want 20%. I think of 20%. You don't have to go to the industry norms. What you want, आपको यूनिवर्स में वो डालना है. You have to give power कि I want 20% hike because I have worked hard, universe. You also know it. तो 20% नहीं होगा तो ना 18% होगा. राइट. अगर पूरा 20% नहीं भी होगा तो आपका 12% का भी नहीं होगा, और 20% भी अगर नहीं होगा तो 18% तो हो जाएगा आपका. बिकॉज यू हैव टोल्ड यूनिवर्स कि आई वॉन्ट दैट. ओके. राइट. बट डाउट लाओगे ना तो नहीं होगा. बट जगह जब आप डाल देते हो कि मुझे 20% हाइक चाहिए ही चाहिए, एंड यू विल सी इट विल हैपन.
Yeah, I just wanted to clarify कि it doesn't sound as selfish, right? Because No, not at all. कि I okay, your told you, no, dreams are see, like many this. people and many people get this into mind. I'm not at all saying that you're wrong because, see, we people, even I was the same because being educated, being in the position of principal, I also had the same thing. मेरा logical mind ज़्यादा काम करता था कि अरे ऐसा करूँ ये realistic है कि नहीं मैं इतना. But unless you see that dream, unless you put that बीज बोलते हैं ना बीज, जब तक आप वो Hmm. बीज आपके माइंड में बोओगे नहीं. देखो कोई कोई झाड़ जल्दी उग जाता है, कोई कोई प्लांट जल्दी नहीं उगता है. राइट, इट टेक्स टाइम. और कोई Okay. कोई मर भी जाता है, आपने वो भी देखा होगा. राइट. आप 3 सीड्स को प्लांट करके देखो और एक ही टाइम पे देखो और अलग अलग देखो, बट अगर उसको राइट वेदर, राइट सीजन, राइट वाटरिंग सब कुछ नहीं मिल रहा है तो वो कोई एक प्लांट को जिसको नहीं ज्यादा जरूरत है वो अपने आप ही उग जाएगा क्योंकि उसको उतनी चीज की जरूरत थी. तो सेम हैपेंस विथ आवर ड्रीम्स, सम गेट फुलफिल, सम विल गेट ओनली टू 50%, सम विल गेट टू 80%. बट इफ यू विल नॉट पुट ओनली दैट थॉट कि नहीं दिस इज रियलिस्टिक, आई वांट 20% हाइक, आई कैन. आप अपने अंदर वो बिलीव डालो कि मुझे, आई हैव द राइट टू हैव 20% हाइक. जब आप Hmm. ड्रीम में भी लिखते हो कि आई हैव द राइट, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट आई हैव गॉट दिस 20% हाइक. आप पहले से ही लिख दो वो ड्रीम में और बोलते रहो आप बार बार कि आई हैव गॉट. रेस्ट यू डोंट हैव टू वरी दैट आई एम बीइंग रियलिस्टिक. नो, इंडस्ट्रीज का नॉर्म ये है तो वो इतना ही देंगे. नो, अगर यूनिवर्स को देना होगा ना, वो कहाँ से भी देता है, कहाँ से भी. बट आपको बीज डालना बहुत जरूरी है. द मोर यू पुट द सीड्स एंड द मोमेंट यू पुट द सीड, उसको भले 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, बट वो होगा जरूर. ठीक है ना. Thank you so much. तो डोंट थिंक, डोंट गो इनटू योर लॉजिकल माइंड मोर कि नहीं कि मैं रियलिस्टिक हो रहा नहीं. आपको जो चाहिए ना, सी यूनिवर्स गिव्स यू. आई एम 100, आई एम टेलिंग यू ना, ऐसे 1001% टाइम आपको जो चाहिए. ओनली थिंग इज कि हमारी प्रैक्टिसेस में हम कम पड़ जाते हैं. हमारा फीलिंग्स वो लाना, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग. मैं बिफोर आई स्टार्टेड द क्लास, ही टुडे आई वाज रियली नॉट वेल. I had you if you know, I sent my link also very late today in the evening. I was like in two minds whether I will be taking the class or I will not be taking the class. But the moment, like the morning when I was down, I just literally just was saying thank you, I'm in good health. Thank you, I'm in good health. And I'm saying today I'm sitting in front of you and doing. Could you believe it today that today I'm having temperature of 101? I'm sitting in front of you. But I did. So this is how does this happen? Miracle. The moment you start saying thank you, no, I'm telling you, मुझे कोई गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. I just slept at 4 o'clock till 5:30 today, and I was back to normal after because I said thank you, I'm healed, and I just went to sleep, got up, and I was fresh. So this is how universe works, but आपका believe होना चाहिए, believe. आप जितना बिलीव रखोगे कि यस मेरा ये डिजायर पूरा हो गया है, पहले से बिलीव करो कि नहीं हो ही गया क्योंकि यूनिवर्स नोज व्हाट यू रिक्वायर एंड ही विल गिव यू. अब वो आपकी परीक्षा भी लेगा, आपकी शिद्दत भी देखेगा कि हाउ मच यू आर इनटू द प्रैक्टिसेस, हाउ मच यू आर बीइंग ग्रेटफुल. मैंने आपको बोला था पैसे का, जब भी हमने पैसे का चैप्टर किया था कि पैसे का सर्कल चलाते रहो. I forgot to tell you, I told you all yesterday that one transgender, he gave me 1 rupee and he gave a blessings. Did I tell that yesterday? I don't remember. Yesterday, what happened? I went from one school to another school, and in one traffic signal, one transgender came, and I usually, if I have cash, and nowadays I don't carry cash. We people are so into online. So I had a 20 rupees note and I just removed and I was about to give. And I use both my hands basically in all my work. Usually people do everything with right hand. I use my both hands. So I put my left hand inside my pocket, in my wallet, and she said, "Don't put your left hand, don't remove." I said, "No, I'm just removing it. I'll give you with right hand." So she said, "Before giving, you तेरा हाथ दे." And she gave me 1 rupee and she kept my on her hand. She asked me my name. She asked my children's name. Hubby, I said, "No, I don't have." And then immediately she blessed, everything. पहले ये ले, and then she took the money. And I was feeling, अरे वाह, suddenly सामने से ऐसे कैसे blessings आ जाती है.
I mean, and then when I reached that school and I was telling the admin staff there कि आज रास्ते में ऐसा ऐसा, they said you're very lucky, they don't give it to everyone and their blessings are really very good. Because I really don't know all about this, but सुना है, मैंने भी सुना है कि when they bless it is really very good. But suddenly on her own I never said anything to her, but then she gave me the blessings. कहाँ ना कहाँ से आपको देखो blessings in return आती है. इमेजिन अ थर्ड पर्सन अनइंटेंशनली, जो मुझे जानता नहीं है या जानती नहीं, मुझे वो ब्लेसिंग दे रही. इजंट दैट अमेजिंग? सी दैट ब्लेसिंग्स विल टेक यू वेयर. तो फर्स्ट बी ग्रेटफुल. पैसे का मैं सर्कल इतना चलाती हूँ, मैं बोलती हूँ ना, मेरे किस्से में पैसा नहीं रहता है ना, तो भी मैं दे देती हूँ. मीन्स आई डोंट थिंक कि यार मेरा वॉलेट खाली हो जाएगा. आई नेवर थिंक ओनली अबाउट इट कि मेरा वॉलेट खाली हो जाएगा. मीन्स जैसे थोड़ा सा भी ऐसे मेरे माइंड में ये नहीं आता है कि नहीं मेरा वॉलेट खाली हो जाएगा. मैं ये सोचती हूँ अरे नहीं, इसने मांगा है ना, अब इसको दे दो, बाकी का मेरा जो भी होगा वो पूरा. एंड आई नो, आई हैव दैट बिलीव कि मेरा पूरा हो ही जाता है. मैं यहां से देती हूँ तो मुझे दूसरी तरफ से पैसे आ जाते हैं मेरे अकाउंट में. तो आई एम लीस्ट बॉदर्ड. बट मेरे पास अगर 20 रुपए भी रहते हैं, 10 रुपए भी रहते हैं ना, 100 रुपए भी रहते हैं, और किसी ने मुझे सामने ऐसे आ जाता है ना, कि आई डोंट हेजिटेट टू गिव ऑल्सो. एंड दैट इज वाई से आप जितना पैसे का सर्कल चलाओगे, आपको ट्रैफिक सिग्नल पे दिखता है, गिव देम. डोंट थिंक कि वो पैसा किधर यूज कर रहे हैं, ड्रग्स में यूज कर रहे हैं, दारू में यूज कर रहे हैं, वट एवर इट इज, बट यूज इट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूज इट. द मोमेंट यू डू द सर्कल ऑफ मनी, एवरी टाइम आप जितना दोगे ना, सर्कल चलाओगे ना, कभी भी पैसा आपके पास आता है, हाथ में रखो, उसको एनर्जी दो, ब्लेसिंग दो, कि ये जिसके घर भी जा रहा है उसके घर में अच्छा हो रहा है, एंड एवरीथिंग. एंड यू सी. और जब आप वो पैसा खर्च करते हो, ग्रोसरी वाले को देते हो, वेजिटेबल वाले को देते हो, तो आप वो रिटर्न में आपके पास आता है भर भर के. ब्लेसिंग्स के फॉर्म में आएगा, गिफ्ट्स के फॉर्म में आएगा, जिसमें भी. चलो आज वो ओपन ओपन किसके लिए करना है बोलो. Say fast. Anyone's demand anything today? Ho'oponopono for what? For मनी. myself, for body, for what? Health, what? मनी के लिए कर सकते हैं. ठीक है, प्रशांत जी, let's do for money. चलो, let's start. Sit straight. Just let me on the music. Let me know if you can hear the sound. Yes, I've shared the sound. So you should hear. Hmm, I'll put another music today. Close your eyes. Just close your eyes. Let's get prepared first. Just close your eyes. Focus. Focus on your breath. And take a deep breath in and out. Take one more deep breath. And out. If you have your money note with you in front, where we had written, "Thank you for all the money that has been given to me throughout the life," you can keep it in your hand, please. Before we start, we will be giving it more power. So keep the money in your hand. Focus on your breath. Sit straight. The back should be straight. Keep the money note in your hand. Give lots of blessing.
feel that you're blessing that money and being thank you for it. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, money. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, money, for not taking care of you. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry for not spending and creating that lack. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me, money. Thank you. I love you. I'm sorry, money. Even though I had you, I said wrong about you. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me, money. Thank you. I'm sorry for feeling that I do not have enough. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, honey. Please forgive me. You came in different forms, but I could not see that. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, money. Please forgive me. Thank you for being in abundance in my life. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, money. Please forgive me. I know you are there for me. Thank you. Love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Though I have so much, but I always create lack. Please forgive me for that. Thank you. I love you. I'm sorry. Please
coming to me in abundance. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me for not saving in the right manner and then blaming you. Thank you. I love you. I'm sorry. Money, please forgive me. Thank you. I love you. Open your eyes. You can rub your eyes. Here we say sorry for the money, for all the wrong things we have said to money, because money is also energy, and it comes to us in many forms, and we have not realized that. Only when we came into this practices, we realized that money has come to us in many forms. So when we say sorry, when we say thank you in Ho'oponopono prayer for money, we release or remove that negative energy towards money. और आज देखना किधर ना किधर तरीके से आपके पास पैसा आएगा, भले छोटी अमाउंट, इवन इन जीपे, इफ यू गेट ₹3 कैश बैक, you will understand the value of it. Say thank you for that money, which even if you receive ₹3 in your GPay, right? So just be very thankful for the money, what you're receiving every time. And even when you're spending money, just don't be too much into, it's going, it's going, it's going. Always, whenever you're giving, say, I'm receiving in your mind. Whenever you're giving money, just keep, I'm receiving. It's going, but I'm receiving in 10 folds in your mind, right? I wanted to share one affirmation with you all today. Can you write it down? Whenever I do this affirmations, I have seen बहुत अच्छे results मिलते हैं whenever I keep on saying this affirmation. So you can write it down. Write down, I now declare that everything is happening for my highest good. You want me to repeat it? I now declare that everything is happening for my highest good. All that I want is coming to me faster than I can imagine. This will accelerate your dreams, okay? So all that I want is coming to me faster than, THAN, than I can imagine. I choose to trust. I choose
to trust and surrender. I choose to trust and surrender to this divine process. I choose to trust and surrender to this divine process. अब आप इसको आपकी भाषा में कन्वर्ट करके बोल सकते हो। आपको इंग्लिश में बोलना है, आप इंग्लिश में बोल सकते हो। आपको जो अ, जिसके साथ फीलिंग आती है, जो लैंग्वेज के साथ में आपको फीलिंग आती है, अपनी जो भी आप भाषा घर में बोलते हो, आप उस भाषा में भी आ, ये करो। बिकॉज दिस रियली हैज हेल्प्ड मी अ लॉट, and I make like that cards and I write it on it and I keep it in front of me, so whenever in the morning I'm doing my practices, I do it. Okay. And you can, there was one more, like who want income, so you can write that also, that my income is constantly increasing and I prosper wherever I turn. My income is constantly increasing and I prosper wherever I turn. My income is constantly increasing and I prosper wherever I turn. This will help you wherever you are working, wherever you want salary to increase. So when you keep on saying, you are turning your subconscious mind with this affirmation कि my income is constantly increasing. You're using that word, right? My income is constantly increasing and I prosper wherever I turn. So automatically your actions go that way and you are no, not necessary धारा मैम कि 21 टाइम्स लिखना है या बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। सी अफर्मेशंस आर समथिंग विच यू कीप ऑन सेइंग टू योर सेल्फ। एंड आपको देखो, आपके मेंटर्स कितने सारे भी अफर्मेशन देंगे, लाइक टुडे आई एम शेयरिंग दिस, आई हाउ यू रिलेट टू इट, whether you feel connectivity to it, it depends upon you, right? तो मुझे जो कनेक्ट हुआ मैंने आपको शेयर किया, आप देखो आपको वो कनेक्ट होता है क्या नहीं। आई से ओरली, आई डू नॉट राइट, आई जस्ट से दैट माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एंड प्रॉस्पर वेर एवर आई टर्न। एंड मैं ये बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब रेवती मैम के साथ में ये किया था, दैट टाइम आई हैड लर्न from her, and then I now declare that everything is happening for my, when you declare, what is declaration? Declaration is you're telling the universe कि I now declare that whatever is happening for my highest good. So here you are agreeing to the universe, you're saying to the universe कि मैं जो भी declare कर रहा हूं या कर रही हूँ वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, यानी जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में, इट इज फॉर माई हाईएस्ट गुड एंड ऑल आई वांट इज कमिंग टू मी फास्टर देन आई कैन इमेजिन। सो यू आर एक्सेलरेटिंग योर ड्रीम्स। तो ये आप जितनी बार बोलोगे ना, वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, यू आर सिटिंग अलोन, एक दो बार आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे यानी देख के करना पड़ रहा है। यू कैन कीप इट ऑन योर फोन, यू कैन कीप इट इन योर नोट पैड इन योर फोन, वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग, you are sitting in metro, you're sitting in, keep open it and just keep on saying, just keep on saying. You don't have to do specific times. I don't believe in that specific times or so, या यही करना है बोलते हैं, देखो सब बोलते हैं कि स्पेसिफिक टाइम पे भी करो, इतने टाइम्स करो, या 369 का टेक्निक यूज करो, ये करो, बट आई डू नॉट डू मच ऑफ दैट। मुझे the moment I have closed my eyes for 2 seconds also now because now I have been practicing, तो मेरे मुंह पे चढ़ जाता है। तो once you will also start practicing, जैसे धारा जी was saying कि 21 days, yes, if you do it 21 days तो आपके मुंह पे वो it will become an habit. But to come into this practice you really need strong willpower. So you have to do your practices. आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, एंड हम किधर फोकस डालते पता है क्या?
अरे मुझे मीटिंग पे जाना है, अरे मुझे ये काम करना है, अरे आज मेरा ये रिपोर्ट मेकिंग है, अरे मुझे किसी के ऑब्जर्वेशंस में जाना है। बट अगर हम पहले ग्रेटिट्यूड के ऊपर फोकस डाल देना तो फिर आपके ये जो बाकी के काम है ना, इट बिकम्स रियली वेल। एंड दैट इज वाई यू शुड डू ऑल दीज प्रैक्टिसेस इन द मॉर्निंग, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट योर डे विद दैट, यू गो इन टू द पॉजिटिव माइंडसेट, और आपके काम फिर ऐसे ऐसे फटाफट होने शुरू हो जाते हैं दिन में। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इमीडिएटली। तो आप हमेशा ट्राई करो कि आप ये प्रैक्टिसेस मॉर्निंग में करो जितना आप कर सकते हो। इवन एट नाइट, इफ यू डू दिस अफर्मेशंस एट नाइट एंड स्लीप, यू सी द इफेक्ट, बिकॉज बिफोर स्लीपिंग व्हेन यू डू दिस, यू आर पुटिंग द बीज, बोलते हैं ना, सीड इन द सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड बोलता है अच्छा, इसको ये बोल रही है कि ऑल आई वॉन्ट इज कमिंग टू मी फास्टर देन आई कैन इमेजिन। I'm explaining this line to you कि all that I want is coming to me faster than I can imagine means what? You're putting this into your subconscious mind. तो subconscious mind बोलता है अच्छा, इसको चीजें जल्दी जल्दी चाहिए। And then you're, you take that type of actions that you reach your dreams. See, affirming is very important. Being in gratitude is very important, because आप जितना वो gratitude में रहोगे, जितना आप affirm करोगे, you are training your subconscious mind. एंड आई एम टेलिंग यू, मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो आपको चाहिए वो मिलता है। बट लेजिमिट 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 बोलते हैं ना कि वो डिजायर होनी चाहिए। आप, योर डिजायर शुड बी ट्रू। योर डिजायर शुड नॉट बी कि नहीं, मुझे मेरे पड़ोसी को नीचा दिखाना है, मुझे मेरे कलीग्स को नीचे दिखाना है ऑफिस में, मुझे ऊपर उठना है। नो, what you want, this desire is for me, because I want that hike. That desire is for me कि I want to see myself in that position. It should be for me. It should not be that I'm comparing myself with others and then I want that. No, it should be कि मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ मुझे ऊपर चढ़ना ही है। I want that step ahead, and I know universe is going to give me. Then the things start happening. You don't have to prove it to other people कि देखते तूने मुझे ऐसा बोला था पर मैं ऊपर चढ़ गई, आज मैं कौन से पोजीशन में चढ़ गई। नो, यू हैव टू बी कंपेयर योर सेल्फ व्हाट यू वांट, व्हाट इज योर रियल डिजायर, कि मुझे कितना चाहिए, मुझे क्यों चाहिए। द रीजन ऑल्सो यू शुड बी नोइंग कि मुझे ये क्यों चाहिए। So when you add, Prashantji, when you said like 20% hike, you can also add sentences, I want this 20% hike because then my lifestyle will become more better. I can spend more on my family, travel, trips, I can have more savings and investments for my family's future. You can write that in your dream. When you write once that dream, आपको किस लिए चाहिए, why you have to write, that is why I said कि we will, अभी हम वापस से practices में जाएंगे ताकि the true exact practices you'll get into। तो जब आप, हम उसका वाई लिखते हैं ना, हमने लिखा था ना ड्रीम लिखना है, तो हमको बिकॉज भी लिखना है कि हमने ड्रीम में वाई भी लिखना है कि वाई यू वांट दैट, राइट। तो अगर मुझे हाइक चाहिए 20%, तो वाई आई वांट, इफ आई वांट टू बिकम अ प्रिंसिपल, और इफ आई वांट अ पोजीशन, व्हाई डू आई वांट, उससे मेरा मुझे क्या क्या चीजें मैं हासिल कर सकती हूँ। तो यू हैव टू बिलीव दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट। तो मैं, अगर 20% मेरा हाइक हो जाता है तो मैं ये कर पाऊंगा, मैं मेरी फैमिली को बाहर लेके जा पाऊंगा, मेरे फैमिली के लिए मैं सेव कर पाऊंगा, मेरे बच्चों का एजुकेशन में के लिए मैं सेव कर पाऊंगा, राइट। तो यू नीड मनी फॉर दैट। यू आर टेलिंग यूनिवर्स कि मुझे सिर्फ हाई पैसा इसके लिए नहीं चाहिए, बट मुझे इसके लिए भी चाहिए कि मेरे पास ऑलरेडी चीजें हैं सामने करने के लिए। आई वॉन्ट इट फॉर माई फैमिली, आई वॉन्ट फॉर माई लाइफ स्टाइल टू इम्प्रूव, आई वॉन्ट। एंड इट्स नॉट हार्म दैट इफ यू टेल यूनिवर्स दैट आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई लाइफ स्टाइल, यूनिवर्स इज देयर रेडी टू गिव अस। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा है क्या मैम? बिकॉज यू आर सेइंग कि मुझे ये चाहिए, हम्म। बट ऑन द अदर साइड समटाइम्स वी आल्सो से दैट आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। हाँ, सो दैट इज व्हाट आई एम तो सेइंग ना कि यू ऑल, यू आर नॉट गेटिंग इट स्टिल। आपने ड्रीम में लिखा कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई हैव गॉट 20% हाइक, हाँ, right? You have already received in my company. Whatever your company's name is, you write that. In my हम्म, position of whatever you are in the position, at what current your position is, and in that company, you write that completely. After that, you are writing for what you want, that money, right? आप ओके, लिखोगे कि from that money what it, so thank you thank you thank you, I have now saved this much money for my daughter's education, from this much, from that hike what I'm getting, I'm able to save for my um,
I've already हाँ, saved for my children's education or for their ओके marriage. ओके, हाँ, You can write that. So you have ठीक है। to always believe that you have already received only. बिलीव तो यही करना। आप जब बिल लिखते हैं ना जब हम, तो 13 डे का ड्रीम, आई थिंक दैट डे यू वर नॉट देयर, दैट डे वी सेड, वी डिस्कस्ड अबाउट दिस ओनली, कि देयर आर 5 स्टेप्स दैट आपको वो सोचना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो भी आपका ड्रीम है, और उसका रीजन लिखना है साथ में। इट हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड। ओके। यस, क्लैरिटी यस आई मैम, यस। और नॉट स्टिल नो नो, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। क्लियर? ओके, यस धारा जी। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मैं लिस्ट बना रही थी वाई का, तो बीच में मुझे एक और भी क्वेश्चन आया। जैसे मैम ने एक बार बोला था कि आपको नीड की और आपको आई वांट की लिस्ट बनानी है। हाँ। तो नीड में तो चलो समझ में आता है कि हमको 4 कपड़े की नीड है, इतने ज्यादा कबोर्ड भर के नीड नहीं है अभी, या 3 चप्पल की नीड है। तो हम्म। आई वॉन्ट में जब मैं लिखती हूँ ना, तो आई वॉन्ट में मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे कि मुझे 3 BHK का घर चाहिए, बट मैं सोचती हूँ हमेशा कि मुझे 4 BHK का होना चाहिए। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ उसको लेके। तो मुझे मतलब नीड का और आई वॉन्ट का थोड़ा क्लेरिफिकेशन चाहिए। आप बोल रहे हो कंफ्यूजन में हो जाते हो, आपका कंफ्यूजन ही वही है दादा जी। नीड इज समथिंग लाइक योर बेसिक नीड्स आर देयर, राइट? अगर मुझे मेरी लाइफस्टाइल अच्छी करनी है, इजंट दैट अ नीड? हम्म। इजंट दैट अ नीड? आप खुद से पूछो कि अगर यस। मुझे, मैं अभी करंटली 2 BHK में रह रही हूँ और मुझे 3 या 4 BHK का घर चाहिए। आपकी देखो, आप कंफ्यूज हो जाते हो 3 और 4 BHK में। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? बिकॉज आपकी क्लैरिटी नहीं है आपके ड्रीम की कि आपको 3 BHK चाहिए या 4 BHK। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे 3 BHK क्यों चाहिए या 4 BHK क्यों चाहिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड वांट एंड डिजायर में कि आपका जो नीड्स है, राइट, दैट इज व्हाई आई सेड लेजिटिमेट डिजायर होनी चाहिए, यानी जो आपको सच में चाहिए। आपका दिल अगर बोलता है ना कि हाँ, क्या होता है ना कि हम जब दूसरों के पास बड़ा घर देखते हैं ना, हमारे दिल में आता है मेरे पास हम्म। बड़ा घर हो, बट मैं वो घर को मेंटेन कर मुझे पाऊंगी नहीं या आता नहीं? मैम। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, बस मुझे यही आता है कि मैं घर को मेंटेन कर पाऊंगी कि नहीं। मैं वही मुझे बोल रही क्यों हूँ ना कि चाहिए वो? आपको, सबके पास आपको बड़ा वो, है तो जरूरी नहीं है मेरे पास हो। तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि आपको उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी। मैं वही बोल रही हूँ, दैट इज वाई यू हैव टू गो डीप इनटू योर डिजायर। दैट इज वाई वी से, जब आप डिजायर लिखते हो, ड्रीम लिखते हो, बहुत सोच समझ के लिखो। क्योंकि मैं अगर 4 BHK का घर सोच रही हूँ या मैं अगर बंगलो सोच रही हूँ, क्या मैं उस केपेबल हूं कि मैं वो बंगलो को भी मेंटेन कर पाऊंगी? राइट? तो यू हैव टू थिंक अबाउट दीज वाइज ऑल्सो इन दैट। और वांट इज, नीड्स इज, सी हो सकता है अगर मेरे लिए 2 BHK के 3 BHK में जाने के लिए मेरी नीड है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा फैमिली मेंबर्स है, राइट? तो वो मेरी हम्म। नीड है, बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई लाइफ स्टाइल। कि भाई हम 3 रूम में घुट के नहीं रह सकते, हमको हर पर्सनल बंदे का रूम चाहिए कि एक भले हमारा किचन साथ में हो, हॉल साथ में हो, बट आई वॉन्ट 3 BHK कि जहाँ पे हर बंदे, जितने भी मेरे घर में फैमिली मेंबर्स है, उनको प्राइवेटली एक एक रूम हो, so that they are living in a good हम्म। peaceful environment and they are able to do their studies. I am able to do my office work, I am able to do my things, my wife is able to do. So that is how we think कि हमारी ये नीड है, राइट? एंड जब हम्म। डिजायर आती है, तो डिजायर का ये होता है कि यू वांट, एंड डिजायर्स आर नॉट बैड। एंड व्हेन यू वांट, ओके, व्हेन यू वांट, दैट मीन्स आपकी सच में अंदर से वो डिजायर है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको थ्री हम्म। बीएचके का घर चाहिए, मुझे आपकी अभी क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं आई कि आपको 3 BHK चाहिए या 4 BHK चाहिए, क्योंकि आपकी क्लैरिटी नहीं है। तो आप पहले वो क्लैरिटी लाओ। और देर इज नो हार्म कि अगर आप अपने आप को बोलते हो कि मुझे 4 BHK भी चाहिए, देर इज नो हार्म, बट आपको उसका ये भी देखना है कि एम आई दैट केपेबल टू मेंटेन दैट 4 BHK ऑल्सो। फिर क्या होगा, आपने अगर 4 BHK मिल भी गया, मैनिफेस्ट कर लिया आपने, आपको आ गया 4 BHK, आपके पास आ गया, बट यू डोंट हैव दैट जॉब, यू डोंट हैव दैट सैलरी, आपके हस्बैंड की सैलरी उतनी नहीं है या आपकी इसकी नहीं है, तो यस, यस प्रशांत, यू कैन लीव। सो तब आपको क्या होगा?
तो आप वो चीज को मेंटेन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, एंड देन अगेन यू आर अनहैप्पी। तो इज दैट रियल डिजायर कि आपकी फुलफिल हुई है, कि उसमें आप खुशी नहीं? मैम मुझे तो 4 BH का चाहिए ही। जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, जो मैंने आपको वीडियो भेजा था, आपने देखा या नहीं पता नहीं, हाँ वो मैं हाँ। रेंट पे दे दूंगी। मेरे इनकम सोर्स के लिए। और नीचे का मैं यूज करूंगी। तो अगर आपको क्लैरिटी है तो फिर कंफ्यूजन कहाँ आ रहा है? नहीं, मुझे तो सिर्फ ये समझना था कि आई वांट में और नीड्स में, आई नीड इट, उसमें क्या फर्क है। मतलब लिस्ट जो बनाने के कि होते हैं ना, तो उसमें अभी आई वांट में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ काफी देखो, बार। नीड ये तो सिर्फ वही मैंने नहीं। एग्जांपल दिया था घर का। हाँ। घर का तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया था कि हम्म। मेरा सपोज ऐसा सोच है, तो क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ ऐसा। कि देखो, जैसे अपन को नीड होती है। कोई भी चीज हाँ सही जी या जी। गलत नहीं होती है धारा जी। कोई भी चीज सही या गलत नहीं होती है, अगर आपकी मन की इच्छा है। आपका ओके। मन ही आपको बताता है कि वो सही है क्या गलत है। मैं नहीं बता पाऊंगी आपकी इच्छा को। बाकी नीड जो है वो, अगर आपकी बेसिक नीड्स है, सपोज मैं 1 BHK में रह रही हूँ, और मुझे, मेरे हम्म घर में 4 मेंबर्स है, और मुझे ऐसा है कि हम आराम से रहे, और मुझे अगर 3 BHK में जाना है तो दैट इज माई नीड। दैट इज माई नीड। मुझे अगर चप्पल चाहिए, हम्म दैट इज माई नीड। हम्म। अगर मैं बोलूंगी कि भाई दीपिका पादुकोण के पास 25 जोड़ी चप्पल है और मुझे भी 25 जोड़ी चप्पल चाहिए, तो वो वांट हो जाएगा। तो आपको वो वांट है क्या, वो ओके। आपको ध्यान करना है कि मेरी वांट रियल में क्या है, कि मैं 25 जोड़े चप्पल लेके करूंगी क्या। नहीं नहीं, मुझे इतने नीड, चप्पल मुझे तो नहीं जरूरत चाहिए। है कि मुझे अभी इतनी 3 जोड़ी चीजें। चाहिए, कि भाई मैं एक शादी में पहन लूं, एक मैं स्पोर्ट शूज पहन हम्म लूं, एक मैं नॉर्मल वाले शूज पहन लूं, एक मैं अच्छी नॉर्मल वाली चप्पल रख लूं, एक मैं घर की स्लीपर रख लूं, चलो 5 जोड़ी हो गई। तो वो आपकी जरूरत है। हम्म दैट इज योर हम्म। नीड, राइट? यस। बट राइट। वांट में ऐसा हो जाता है कि आपको क्या चीज की जरूरत है। आई वॉन्ट हैप्पीनेस। मुझे घर तो बड़ा मिल जाएगा, बट उसमें मुझे हैप्पीनेस भी चाहिए, ये जोड़ना बहुत जरूरी है। आप यस। उसमें उसको मेंटेन कर पाओ, ये भी जोड़ना जरूरी है। आज अब मैंने यही लिस्ट बनाई मैम। मनी के लिए मुझे ऐसा आ रहा था ना कि मेरे को इतना इनकम सोर्स चाहिए। तो मैं सोच रही थी साथ साथ में मुझे फ्रीडम भी चाहिए। फ्रीडम किस टाइप की, कि हेल्थ की भी, मेंटल हेल्थ की भी, और स्पिरिचुअल हेल्थ की भी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी फ्रीडम चाहिए। और मेरे मुझे तारा जिसके जी, साथ जाना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। से फ्रीडम कभी नहीं मांगना। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से यही जो सोच रही भागता थी। है, ऊपर वाला उसको जबरदस्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। कभी भी ऐसे नहीं बोलना। बिकॉज ओके। इन Ho'oponopono also we say that I take complete responsibility for my action। और आप अगर ऐसा बोलोगे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, तो फिर बाकी की चीजें कैसे नहीं नहीं, बाकी मुझे की चीजें परमानेंट कैसे की बात नहीं मिलेगी? कर रही हूँ मैं। परमानेंट की बात नहीं, मतलब नहीं कभी नहीं, कहीं घूमने आप जाना बोले हो मैं तो फ्रीडम कहीं। मांग रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी फ्रीडम चाहिए। यू आर यूजिंग मतलब रॉन्ग मेरा इंटेंशन, वर्ड। हाँ मतलब मेरा इंटेंशन ये था कि घूमने जाऊं तब मेरे को रिलैक्स वाला घूमने मिले ऐसा। हाँ, तो रिलैक्स ऐसे बोलो कि मैं फ्रीली, मुझे मुझे फ्रीडम है कि आई एम मूविंग अराउंड फ्रीली। मुझे मुझे आई एम एबल टू, मुझे मेरा मन के मुताबिक मैं फ्रीली घूम पा रही हूँ। बट अब अगर आप बोलोगे कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्रीडम मिले, तो वो नहीं होगा। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि भगवान, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये लाइफ में हमको फेस करनी ही करनी है। And you have to accept the responsibilities, because through responsibilities only we face the challenge। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो लेनी ही पड़ती राइट। है। हमारे एक्शंस की राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे थॉट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे रिलेशनशिप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे घर के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम डेली करते हैं। हम अगर जॉब करते हैं तो उसकी वहां के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। अपना हेल्थ की केयर नहीं करना, हम्म। वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम हमारी हेल्थ के ध्यान नहीं दे रहे, तो वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते राइट। नहीं है।
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से राइट। भागते हैं ना, तो फिर उनका लाइफ की डिजायर्स जल्दी कंप्लीट नहीं होती, और वो मिलती है तो फिर बहुत टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए रहती है। तो हमेशा जो वर्ड्स आप बोलो ना, तो वो हम्म। ध्यान से बोलो कि मुझे किस, अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सच अ बिग वर्ड। इमेजिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सच अ बिग वर्ड। एंड फ्रीडम, हम जो ये फ्रीडम भी बोलते हैं ना, फ्रीडम इज सच अ बिग वर्ड। आप अगर हम्म। फ्रीडम फ्रॉम द मेंटल हेल्थ, फ्रीडम फॉर द फ्री स्पेस, मेंटल पीस, ये आप बोलोगे ना, तो फ्रीडम नहीं बोलते। आई डिजायर मेंटल पीस, आई डिजायर, ओके। आई ऑलरेडी हैव मेंटल पीस, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल। आप ये बोलोगे। ओके, आई वांट बोलोगे ना हम्म। कि आई वांट फ्रीडम, आई वांट दिस थिंग, तो फिर वो वांट में चला जाता है। और फिर वांट वाली चीजें मैंने अभी तुमको जो एक्सप्लेन करी ना, तो वो थोड़ा सा चेस वर्ड करते ध्यान रहेंगे दो, हम। थोड़ा ध्यान दो हाँ। जो आप यूज और करते हो ना वांट में उसमें। वैसे भी चेजिंग वाली एनर्जी आती है कि वो हम उसके पीछे पीछे भागते रहेंगे और हाँ आई वांट राइट, हमको भगाता रहेगा। यस। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि आई एक्सेप्ट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन अरविंद से सर बोलते हैं ना कि कबूल करो, कबूल करो। क्योंकि मैं जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हूँ कि ठीक है यार, अभी ये चैलेंज भी आया है, कि इसकी वजह से भी मैं ये, यानी ये मेरी वजह से ही आया है, ये जो चैलेंज मुझे आया है, ऊपर वाले ने मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है, तो आई एक्सेप्ट इट। बिकॉज द मोमेंट यू हम्म। एक्सेप्ट, देखो जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, तो हम क्या करते हैं, वी रेजिस्ट, we resist, and when we resist it persists, राइट। then it does not move out. When we resist it will हम्म। persist। तो आपको रेजिस्ट नहीं करना, आपको एक्सेप्ट करना कि ठीक है ये हो रहा है अभी मेरी लाइफ में, इट्स ओके। जैसे आज सुबह में मेरी हेल्थ में ब्रेक डाउन था, आई सेड आई एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है, मैंने कल अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है, तो आई एक्सेप्ट कि हाँ मैं, मेरी गलती थी कि मैं तीन तीन स्कूल्स में गई, बिकॉज आई वांटेड टू फिनिश माय ऑब्जर्वेशंस एंड दिस एंड दैट, एंड फिर मैंने अपने आप को इमीडिएटली हील करने का प्रोसेस चालू किया कि यस आई एम हील्ड एंड एवरीथिंग इज ओके। तो इट डिपेंड्स, हम्म। हाउ हम वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही और क्रिएटिव मैम होते हैं। एक और क्वेश्चन था, जैसे मुझे बार बार एक सेम पैटर्न के एक्सपीरियंस होते रहते हैं कि पर्सन आर लाइंग विथ मी, और उनकी जो उन्होंने किसी को हेल्प की हुई होती है या उन्होंने किसी को कुछ मनी का या कुछ दिया होता है ना, तो वो मतलब छुपाते बहुत है, और फिर बाहर की दुनिया को सबको पता होता है बट घर के लोगों को ही पता नहीं होता है। तो आप जैसे किसकी मैं बात कर फैमिली रहे हो मेंबर हूँ। धारा जी, आप? मेरी मेरी मतलब मैं खुद की बात कर रही हूँ। तो हाँ, जैसे हम फैमिली मेंबर है, हमको लास्ट में पता चलता है किसी से, तो बहुत मतलब चैलेंजिंग वाली फीलिंग आ जाती है। तो आई टेल यू मैं वो वन चीज थिंग। अब अट्रैक्ट नहीं करना चाहती, मुझे देखो, अब उससे रीड ऑफ होना है, तो मैं नहीं कैसे नहीं, मतलब यानी उससे। आप ऐसा बोल रहे हो कि आपके कोई घर के फैमिली मेंबर ने बाहर किसी को फाइनेंशियल हेल्प किया, राइट? यस। और आपको नहीं पता चला वो, हम्म। हम्म। आपको क्यों जानना है? पहले अपने माइंड से पूछो, आपको क्यों वो जानना मुझे इसीलिए हर्ट होता है कि व्हेन व्हेन आई वांट समथिंग एंड आई वाज आस्किंग कि भाई मुझे ये चीज लेनी है या वो चीज लेनी है, है? एट दैट टाइम दे आर ऑलवेज एक्सक्यूजिंग कि मेरे पास ओके। पैसे नहीं है, और ये चीज क्यों लेनी है, इसकी क्या जरूरत है, मतलब वॉट एवर कुछ ना कुछ हाँ, बोलते रहते हैं। मुझे तो मैं याद वो है। बोलती हूँ वही बजट का आप दूसरे किसी को हेल्प करते हो और घर के लोगों को तरसाते रहते हो, और ये मेरा बचपन से ऐसा ही हो रहा है कि हम्म मतलब मुझे चीजें है ना बहुत मांग मांग के मिली है, जल्दी से नहीं मिलती, और मिलती है ना तो थोड़े टाइम के लिए। हम्म। तो अपने आप तो पे वर्क करना उसका है मुझे ना। पैटर्न अब रिपीट नहीं करना। हाँ और तो वो धारा उसमें जी, पर्सन झूठ भी बहुत यू बोलता है। पर्सनल पे मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगी उसके लिए क्या करना है पैटर्न ब्रेक करने के लिए। बिकॉज इफ दिस पैटर्न इज रिपीटिंग, देर इज समथिंग विच इज स्टिल देयर इन द पास्ट ऑफ योर्स। एंड आपको अभी एक चीज करना है कि पहले तो आपको, जो सामने वाला बंदा ऐसा कर रहा है ना, आपको उसके लिए नेगेटिव फीलिंग नहीं लानी है, आपको हर्ट अपने आप को भी नहीं होने देना है। बिकॉज देखो, मैं अगर मुझे कोई ऐसी चीज बाहर से पता चलती है, राइट, कि अगर मेरे बच्चे ने किसी को हेल्प किया है, राइट, मेरे बेटे ने, सपोज एग्जांपल देती हूँ, और मुझे नहीं हम्म। बताया, मैं बुरा नहीं मानती हूँ। मैं उसके लिए बुरा नहीं मानती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो मेरी हर डिजायर पूरी करता है, राइट, और आपको आज हर्ट फील हो रहा है बिकॉज, क्योंकि जब आप उनसे मांगते हो, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस है, राइट,
बट जब नहीं, आप बट मैम जरूरत वाली चीजें मैंने मांगी है, आज तक मैंने हाँ, कोई ऐसी अनवांटेड आई एम चीजें नहीं अंडरस्टैंडिंग, मांगी है। मुझे समझ में आ रहा है आपका हाँ, कि आपका किसी की देख, किसी पेन को पॉइंट देखा समझ में देखी आ में गया। मांग लिया, ऐसा नहीं। हाँ, पेन पॉइंट हम्म। समझ में आ गया मुझे आपका। आपका क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ योर्स, तो मुझे पता है कि आपका पेन पॉइंट क्या है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इफ यू गो इनटू नेगेटिव इमोशन एवरी टाइम ना, देन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो अगर आपको ऐसी चीज पता भी लगती है ना, तो आप बोलो थैंक यू कि माय जो भी आपके फैमिली मेंबर इज सो केपेबल ऑफ हेल्पिंग अदर्स एंड हेल्पिंग मी। आप सेंटेंस क्या यूज करोगे कि थैंक यू दैट जो भी आपके बंदे ने हेल्प किया, आपके फादर हो, मदर हो, जो भी हो, या ब्रदर हो, जो भी, यू से कि थैंक यू, दे आर सो केपेबल ऑफ हेल्पिंग अदर्स एंड हेल्पिंग मी। ये सेंटेंस आप यूज करना शुरू करो, आप देखो वो चीज आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। आप वो सेंटेंस ओके। यूज करो आपके लिए भी। डोंट गो इनटू द ठीक। हर्ट, डोंट गो इनटू द नेगेटिव। आई आई अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे जब होता है तो वी फील बैड, क्योंकि हम जो चाहते हैं, हम भी एक्सपेक्टेशंस अपने लोगों से रखते हैं, फिर नहीं होता है। बट व्हेन यू स्टॉप कीपिंग एक्सपेक्टेशंस ना, यू यू हैव टू हैव अ बिलीव कि यूनिवर्स मुझे, आई एम इनफ, यूनिवर्स मुझे कहाँ से भी प्रोवाइड करेगा। इट्स नॉट नेसेसरी इट हैज टू कम फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स ओनली। तो मैं, आप जब ये एक्सपेक्टेशन अपने आप को देना शुरू करते हो, अपने माइंडसेट को ये बोलना शुरू करते हो, मेरे पास कोई नहीं था धारा जी, मैंने सब चीजें अपने आप की, मैंने उस दिन आपको शेयर भी किया था, देर इज नो वन। बट मैम मैं दोपहर को यही प्रे कर रही थी कि अब मुझे उस पर्सन के सामने कभी हाथ ना फैलाना पड़े, मैं यूनिवर्स यस, तुझे ही यू, सरेंडर करती देखो हूँ, आपको मुझे ऐसे तुमसे ही नहीं, नहीं चाहिए। नहीं, देखो ये भी हम नेगेटिव बोलते हैं कि मुझे कभी ऐसा हाथ नहीं फैलाना पड़े। ऐसे बोलना ही हम्म। नहीं है आपको, ऐसे उसको ब्लेस करना है दैट ही इज केपेबल ऑफ हेल्पिंग अदर्स एंड हेल्पिंग मी। जब आप ऐसा बोलोगे ना, तो हेल्प उनके पास से भी आ सकती है। बट नेगेटिव में नहीं बोलना है हमको कि हमको, हमें कभी उसके सामने मुझे, फिर जब आप ये बात करते हो ना, तो आप ध्यान करना, ये हमारा ईगो सेल्फ बोलता है कि मुझे उसके सामने हाथ ही ना फैलाना पड़े। ये हमारा ईगो सेल्फ राइट। बोलना चालू हो जाता है। तो आप ध्यान करो, एंड यू आर अ वेरी अवेयर अवेयर वाली पर्सन हो। आप इमिडिएटली अपनी थॉट को पकड़ते भी हो, आप बोलते भी हो मुझे, जब मेरे से बात करते रहते हो, तो आप पकड़ो अपनी थॉट को कि आप वर्ड्स जो है ना वो करेक्टली यूज करो कि ही इज केपेबल ऑफ हेल्पिंग अदर्स एंड हेल्पिंग मी। आप जैसे ऐसे करोगे तो हो सकता है हेल्प आपके लिए आ जाए। मैंने आपको बताया था कि आई हैव नेवर टेकन अ सिंगल मनी, माई father was like healthy wealthy person itna, and my brother so much, they have in crores, but I have not taken a single money from them। मैंने आपको शेयर भी किया हम्म। था ये बात। तो यू डोंट, यस। तो देखो जब आप अपने आप में वो बिलीव लाते हो ना कि आई एम इनफ, आई कैन डू एवरीथिंग, even after my husband expired I never took a single penny from my parents for doing anything, एंड हैव डन सो हम्म। मच, आई हैव टोल्ड यू दैट डे कि मैंने क्या क्या किया। तो इट इज लाइक आप जब अपने आप में बिलीव लाते हो ना कि यूनिवर्स ये मुझे कहाँ ना कहाँ से प्रोवाइड करेगा, मुझे पता है कि यूनिवर्स मुझे देगा ही देगा, तो आपको वो चीजों के लिए हेल्प आएगी ही आएगी। बट ब्लेस द पर्सन, ओके। डोंट डोंट गेट, मैं समझती हूँ कि ये इमोशंस है अपने अंदर, तो हमको गुस्सा आता है क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे हमारे लोग हेल्प करें, राइट। बट आपको उस इमोशन को पॉजिटिविटी देनी है इस तरीके से कि ही इज केपेबल ऑफ हेल्पिंग अदर्स एंड हेल्पिंग मी। तो जब आप ये डालते हो ना, तो वो आपका पैटर्न ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। टुमारो आई विल शेयर विथ यू व्हाट टू डू विथ फॉर ब्रेकिंग दिस पैटर्न। ओके। ठीक है, थैंक यू मैम। यस मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर रिलैक्सिंग मी। गुड गुड, यू आर अवेयर, आई नो। आप पकड़ते हो अपनी थॉट्स को बहुत अच्छे तरीके से, एंड बिकमिंग अवेयर इज ओनली, पहले सबसे बड़ा कदम इस जर्नी में यही है कि आप अपने थॉट्स को पकड़ रहे हो कि मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, मैं नेगेटिव इमोशंस में जा रही हूँ कि पॉजिटिव में हूँ। सबके साथ होता है। मैं बोल रही हूँ ना, आज सुबह में आई वॉज स्टिल नॉट क्लियर वेदर आई विल बी एबल टू टेक टुडे क्लास, बट सी आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू फॉर सो मच टाइम टॉकिंग इन नॉर्मल। तो ये मिराकल्स नहीं है क्या? इजंट दिस यस। मैजिक हैपनिंग? यस। यस। बिकॉज 101 का फीवर था, एंड आई वाज जस्ट कि यार सडनली फीवर आ गया, मुझे क्या हुआ, क्या खुद को समझ में नहीं आया। एंड देन आई, अरे यार आज तो इतना बॉडी पेन है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं क्लास ले पाऊंगी क्या नहीं। एंड माय सन वाज सेइंग कि मम्मी डोंट टेक द क्लास, यू रियली नीड टू रिलैक्स टुडे, आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। आई सेड या आई विल सी इफ आई रियली, इफ माय बॉडी डिमांड दैट, एंड आई विल डू। एंड आई वेंट टू स्लीप एट 4 o'clock, saying the healing, yes, I'm healed, I'm okay and fine. And I got up by 5:30, had a cup of tea, I was okay.
विदाउट एनी मेडिसिन। मैं मेडिसिन तो मैं बोलती हूँ ना, आई नेवर गो टू मेडिसिन फास्ट, कितना भी कुछ हो मैडम मेरा अभी अभी बहुत ऐसा हो गया, कुछ होता नहीं ना, अब मेरे से मतलब क्या टॉलरेट नहीं होता है बॉडी पेन या ऐसा कुछ, आई कैन मतलब एक तो अंडरस्टैंड, आई कैन होपोनोपोनो की वजह अंडरस्टैंड, से भी। आई और कैन। धारा जी, आई टेल यू, अब मैं जल्दी ले लेती हूँ। हो ओपनोपोनो प्रेयर जो है ना, अगर आपको हम्म। उससे भी थोड़ा इरिटेशन और वो सब हो रहा है ना, तो आई टेल यू उससे क्या होता है, ऑल योर नेगेटिव एनर्जी इज कमिंग आउट, जिसकी बहुत ज्यादा डीप में रहती है ना। बिकॉज व्हेन आई हैड स्टार्टेड डूइंग, इवन आई वेंट थ्रू दैट, इवन व्हेन आई डू फॉर अदर्स, मुझे, मैं खुद थोड़ी देर के लिए वैसे बीमारी फील करती हूँ जब मैं डीप ये करती हूँ। तो बट देन आई रियलाइज हम्म। ऑल्सो, यस यस आई डिड दिस, दैट इज व्हाई हैपनिंग, देन आई यू डू ओपन ओपन फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। और Ho'oponopono ओके। brings out all this irritation, jealousy, आपका एंगर जो अंदर दबा हुआ है, वो सब चीज को बाहर निकालता है, सब चीज को। मैम बट होता क्या है कि जब हम, चलो हम खुद के लिए करते हैं या किसी के भी लिए करते हैं, हमारे अंदर तो ये चीज आती है बट सामने लोग भी ऐसे ही मिलते हैं यस हमको। आई नो, आई नो ये होता है, एंड आई कैन मैं खुद ऐसा अंडरस्टैंड धारा सोचने जी, इट लगती इज हूँ नॉट इजी, कि जिसको जो वो पोजीशन में रहता है ना, तो वो, दैट इज वाई आज की जो प्रैक्टिस है ना, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल एवरी वन, यू नो, यू ऑल शुड नाउ ब्लेस धारा जी, यू नो, विद गुड हेल्थ, गिव हर ब्लेसिंग्स, give her everything, you know, that she gets whatever she's desiring, you know, whatever she's having, she's, you know, health, इसके लिए सबके लिए बोलो ऐसा, कि you know, bless, so that whatever you also get, you यस। also get the same thing, you know, like in return to you are, you know, helping, blessing other यस आई ब्लेस people. यू ऑल, आई ब्लेस यू Yeah, ऑल। चलो, आई ब्लेस यू ऑल yeah, let's विथ wind up, abundance of या health and 9:45 हो everything. रहे हैं। चलो, let's wind up, yeah. Good night ma'am, good night all of you. God bless you all. Thanks for joining. May God give you all that you Good desire. night. गुड Good नाइट night. मैम। Yes. Good night. And you can send me your desire list or whatever you need in on my personal chat box. Okay. Bye bye. Okay. Yeah, thank you. Bye ma'am. Take Bye. care. Yeah. Bye. Bye. Bye.